Hello guys, today we'll be learning class 12 English lesson number 1.6. Name of the lesson is Into the Wild. It is written by Kiran Purandare. I have already covered part 1 in different video. Since the lesson was too big, so I have split it into two parts, and anyway lesson itself is divided into two parts and two different stories. So better I thought put it in a different video. So today in this video I'll be covering part 2. If you have not seen part 1, I'll request you to visit my YouTube channel Learn with BS. Okay. In playlist you will find English grammar videos also, English writing skill videos also, and academic English also. 1.6 chapter part 1 I have put. In this video I have put part 2, and also I have covered brainstorming of the whole lesson, explanation of the lesson Into the Wild by Kiran Purandare. I already gave you introduction about Kiran Purandare, part 1, part 2. He has written two stories in this lesson. Part 1, which was Into the Wild, Lost in Jungle, how he got lost in the jungle and how he could manage to come out of it. It was the story in part 1. Now part 2 is totally different story, Tracking the Panther of Nagarhole. Shaz Jung is a wildlife photographer, cinematographer, big cat tracker, man-animal conflict resolution seeker, and lodge owner, all rolled into one. When he is away from jungles of Nagarhole, officially called the Rajiv Gandhi National Park, he is leading photography safari in Africa or showcasing his work at art galleries in capital cities and speaking to those interested in conserving the planet's riches. Now this is about Shaz Jung. part 2 में Shaz Jung के बारे में है. If you don't know him, let me tell you, he is wildlife photographer. जंगली जानवरों के ऊपर पिक्चराइजेशन करना, फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकालना, और बड़ी कैट यानी चीता टाइगर का ट्रैकिंग करना, उनके ऊपर वीडियोज़ बनाना, फ़ोटोज़ निकालना. मैन एनिमल का अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, झगड़ा हुआ, कुछ फाइट हुआ, उनको कैसे रिजॉल्व करने का, लाइक दिस. इट इज़ एवरीथिंग इन दिस पर्सन. ही डज एवरीथिंग एंड इट इज़ रिटन लाइक व्हेन ही इज़ अवे फ्रॉम जंगल्स ऑफ नागरहोल. अगर जंगल में नहीं घूम रहे होते हैं तो ही नागरहोल, जिसका नाम है राजीव गांधी नेशनल पार्क ऑल्सो. तो ये क्या करते हैं, अगर वहाँ पे नहीं होते हैं नागरहोल में, ना राजीव गांधी नेशनल पार्क में नहीं होते हैं, तो वो फोटोग्राफी करते हैं कहाँ पे, सफारीज़ इन अफ्रीका, और शो कॉजिंग इज़ वर्क एट आर्ट गैलरीज. अपना जो केसेस है वो दिखाते रहते हैं या अफ्रीका में विज़िट करते रहते हैं, और इंटरेस्टेड इन कंजर्विंग द प्लैनेट्स रिचेस. Shaz recalls with great clarity the incident that ultimately leads to his answering the call of felines over a career dedicated to finance. इन्होंने फाइनेंस का करियर छोड़ के डेडिकेट करके इसके ऊपर ये काम करना चालू किया. फिलाइंस यानी क्या होता है, रिसेंबलिंग अ कैट. कैट कैटेगरी के जो एनिमल्स हैं उनके ऊपर इन्होंने टाइम स्पेंड किया. इट वॉज समवेयर अराउंड सनसेट. वी वर एट अ जंक्शन. द डियर वर कॉलिंग. He says we went around a blind turn. He continues, and up ahead on the path was his old leopard. You could tell he was past his prime. The jungle had taken a toll on him. He only had 3 canines. Canines यानी जो teeth होते हैं उनको, एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स के टीथ को. His eyes were sagging. Sagging यानी drooping, नीचे जैसे गिर रही थी, ओल्ड हो गया था. Close to this leopard was another very young, good-looking male who was soon to come into his prime. It was like looking at the past and the present. It was clear that there was going to be a fight. Unfortunately, the sun was setting and we had to leave. But the next morning I went back to the spot. Sitting on the high rock was that young leopard. Blood was dripping from a gash across his face. Gash यानी long deep cut. He sat there like he was king of jungle. I knew right then that he had taken over, that it was beginning of a new journey for him and for me. Now he is telling once his experience कि वो जंगल में थे और उन्होंने क्या देखा, 2 लेपर्ड्स देखे. एक लेपर्ड बहुत यंग एंड दूसरा बहुत ओल्ड. एक जो था लेपर्ड जो ओल्ड था वो राजा था, प्राइम में था, अपनी ताकत में था,
अभी उसके सामने एक यंग लेपर्ड आया, जैसे लग रहा था पास्ट एंड प्रेजेंट लेपर्ड का। वो जो यंग लेपर्ड था, ही वांटेड टू टेक ओवर, लाइक ही वांटेड टू टेक ओवर द प्राइम, यानी जैसे जंगल का राजा उसको बनना था, उसको पावर लेना था कि अभी तुम ओल्ड हो गए हो, तुम रिटायर करो। तो शाज जंग इज टेलिंग कि उसको क्लियर ही लग रहा था कि इन दोनों में फ़ाइट हो जाएगी और वो जो यंग है लेपर्ड वो टेक ओवर करेगा। बट क्योंकि इवनिंग हो गई थी तो ही सेइंग ही हैड टू लीव, शाम हो गई थी, सन वॉज सेटिंग, तो जंगल में वो रह नहीं सकते क्योंकि लाइट वगैरह नहीं होती है जंगल में, तो कहीं खो गए, वाइल्ड एनिमल का प्रे बन गए, इसके लिए ही हैड टू लीव द स्पॉट। बट नेक्स्ट डे राइटर अगेन वेंट टू सी, तो उन्होंने देखा कि वो जो यंग लेपर्ड था वो पूरा ज़ख्मी था, एकदम बहुत उसको फेस में से खून बह रहा था। तो उनको समझ में आ गया कि अभी वो अपने आप को किंग ऑफ जंगल समझता है, वो अभी जीत गया, इसके लिए अभी वो पावर लेके बैठा है और उसको दूसरे वाले लेपर्ड को, ओल्ड को उसने हटा दिया, मार दिया। अभी इसकी न्यू लाइफ चालू हो गई एंड शाज जंग इज सेइंग मेरी भी शायद नई लाइफ चालू हो गई। फोटोग्राफ्स ऑफ दैट लेपर्ड द विक्टर स्कैरफेस एज शाज नेम्ड हिम। नाउ शाज जंग जो है उन्होंने उसको लेपर्ड को नाम दे दिया स्कैरफेस। कौन से लेपर्ड को? जिसने जीत लिया, द वन हु वन, यानी यंग जो लेपर्ड था जिसको जीत लिया, उनका नाम रख दिया स्कैरफेस। नॉट ओनली मेड शाहजहां फेमस अमंग इंडियाज़ वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी बट ऑल्सो लेड टू शाह's एनविएबल रेपुटेशन एज अ क्रॉनिकलर ऑफ वाइल्ड। अभी उनके जो फ़ोटोज़ निकाले थे शाहजहां ने, उसकी वजह से शाहजहां की बहुत बहुत फेम मिला, उनका नाम मशहूर हुआ और उनको एक रेपुटेशन भी मिली। क्या रेपुटेशन मिली? कि ही इज़ अ क्रॉनिकलर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं ना, यानी पर्सन हु राइट्स अकाउंट्स ऑफ इवेंट्स व्हेन दे हैपन, यानी अकॉर्डिंग टू द टाइम व्हेन दे हैव, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे थे। तो उनको अच्छी रेपुटेशन मिली है कि वो एक अच्छे क्रॉनिकलर हैं वाइल्ड लाइफ के। थ्रू माई जर्नी ऑफ फोटोग्राफिंग स्कैरफेस आई हैव डिस्कवर्ड अदर लेपर्ड्स, हिज मेट्स, एंड डिस्कवर्ड दिस नेमाइसिस tigers. I also discovered the current protagonist of my work, Saya, while tracking Scarface. अभी शाज जंग जो है कि उन्होंने फ़ोटोग्राफी की किसकी? स्कैरफेस की, जो लेपर्ड जीत गया। बट दूसरे भी लेपर्ड्स को उन्होंने देखा, धीरे धीरे उनकी स्टडी की है, उनके कांटेक्ट में आए, उनके मेट्स यानी उनके पार्टनर्स वगैरह, टाइगर्स उनको जो मिले हैं। और एक और एनिमल प्रोटैगनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर जो है जिसके ऊपर उन्होंने काम किया है वो है साया। वाइल ट्रैकिंग स्कैरफेस वो उनको मिले। दिस इज़ दी वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक पैंथर। अभी साया किसका नाम दिया है? ब्लैक पैंथर को। वो भी शाज जंग को मिला, ब्लैक पैंथर भी, उनके स्कैरफेस के फोटोग्राफी करते टाइम। द बिहेवियर ऑफ विच इज़ बीइंग डॉक्यूमेंटेड सो इंटीमेटली ऑन कैमरा बाय ट्रैकिंग इट्स मूवमेंट. So far all the research on the animal has been done through camera traps. Through many months of toil, Shaz has managed to collect precious footage including that of an animal mating to piece together the incredible landscape of a black panther's life. अभी शाज जंग ने काफ़ी उनकी ब्लैक पैंथर की फ़ोटोग्राफी की है, उनकी बिहेवियर ऑब्ज़र्व की है, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है इनकी मूवमेंट के ऊपर, जिसकी वजह से उनको काफ़ी फेम भी मिला है और काफ़ी सारे प्रेशियस फुटेज यानी जैसे एनिमल मेट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, उनकी भी और सब जो है फ़ोटोग्राफी वीडियोज़ वगैरह उनको काफ़ी सारे मिले हैं ब्लैक पैंथर के लाइफ के ऊपर. साया, स्कैरफेस एंड पारदूस, द लेपर्ड दैट लॉस्ट टू स्कैरफेस, हैव ऑल्सो लेड शाज डाउन अ डिफरेंट पाथ ऑफ डिस्कवरी. अभी 3 मेन जो एनिमल्स है, एक साया जो ब्लैक पैंथर है, स्कैरफेस जो लेपर्ड ने जीत लिया लड़ाई करते टाइम, और पारदस जो ओल्ड लेपर्ड था जो स्कैरफेस के साथ लड़ाई करते करते मर गया. तो ये सब जो है इनकी स्टडी करते करते, फोटोग्राफी करते करते शाज जंग को काफ़ी सारी पाथ में डिस्कवरी मिली है. लर्निंग अबाउट देम एंड द लॉस टू देयर habitat has led Shaz to create the Buffer Conflict Resolution Trust of India, which is called BCRTI. It's an agency that educates villagers who live on the fringe of the forest on the importance of conservation. Fringe यानी बॉर्डर पे, जो फॉरेस्ट के बॉर्डर पे गांव है कि उनको एजुकेशन देने के लिए इसको ये काम आया है. उन्होंने क्या किया है, शाज जंग ने क्रिएट किया है बफर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया.
कि जो एनिमल्स हैं उनका हैबिटेट, उनका घर जो है लूज़ हो जाता है, मिट जाता है। क्यों? क्योंकि लोग उनको जंगल को मिटा देते हैं, या फिर कभी कोई एनिमल्स उनको तंग किया, मारा, हमला किया, तो वो लोग उनको एनिमल को मार देते हैं, उनका हैबिटेट को, रहने की जगह को ख़राब कर देते हैं। तो इनको शाहजहाँ को लगा कि जो फॉरेस्ट के बॉर्डर पे गांव है उनको एजुकेट करना चाहिए, इम्पोर्टेंस बताना चाहिए कि कैसे फॉरेस्ट को भी कंजर्व करना, ट्रीज़ को कंजर्व करना, एनिमल्स के हैबिटेट को कंजर्व करना ज़रूरी है। वी आर इन द हार्ट ऑफ द मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जोन, एक्सप्लेन्स शाज। देयर इज़ नो स्पेसिफिक बफर जोन हियर अराउंड नागारोल। द कोर एरिया ऑफ forest ends where the fields begin. In dry season, elephants and wild boar incursions into fields are very common. Older leopards like panthers who have lost territory in the forest often carry away livestock from villages. This creates resentment among local towards the animal on the occasions, leading to unpleasant situations. Resentment यानी नाराज़गी। अभी शाज बोल रहे हैं कि जो अब हम लोग कहाँ पे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जोन में हैं। अभी कोई एनिमल आदमी के ऊपर अटैक करते हैं। अभी क्यों? क्योंकि वो विलेजर्स जो उस विलेज में रहते हैं, जो कि बॉर्डर पे ही है फॉरेस्ट के, तो नेचुरली वहाँ पे एनिमल्स कभी भी फॉरेस्ट से बाहर आ सकते हैं। और मेन जो है कि जहाँ पे फॉरेस्ट ख़त्म हो रहा है वहीं पे उनकी फील्ड बिगन हो रही है, तो उनको फील्ड में जाना ही पड़ता है। और क्या होता है, जैसे वो ओल्ड लेपर्ड मर गया, पारदस उनकी, या फिर उनको टेरिटरी से निकाल दिया क्योंकि वो प्राइम में था। अभी यंग लेपर्ड आके उस अपना दादागिरी दिखाने लगा कि ये मेरी एरिया है। वो वहाँ पे हंटिंग नहीं कर पा रहा था यंगर एनिमल्स की। तो ये क्या करते हैं, वो फील्ड में घुस जाते हैं। बाजू में जो गांव का फील्ड है, गांव वालों का, वो फील्ड में घुस जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, लाइव स्टॉक जो डोमेस्टिक एनिमल है उनको चराने के लिए फार्मर्स लेके आते हैं फील्ड में। तो ये क्या करते हैं, उनको लाइव स्टॉक को खा लेते हैं। तो अभी विलेजर्स को गुस्सा लगता है। तो ऐसे चीज़ में, ऐसे बात में अभी शाहजहाँ सोच रहे हैं कि इन दोनों का मैं समझौता करा दूं, जैसे कि वो नेचर को कंजर्व करें। पुटिंग टूरिस्ट करेंसी टू गुड यूज़ अंडर द BCRTI अम्ब्रेला, शाज प्रोवाइड्स लोकल्स विद वोकेशनल ट्रेनिंग with the aim of educating locals on the merits of conservation and to help them benefit from tourist currency. The visitors at the resort are welcome to volunteer to teach a skill training class of their choice. The acquired skills enable locals to find employment with any of the numerous wildlife resorts in the region, if not in far away city. Now, टूरिस्ट को क्या है कि उनको सिखाया जाता है अंडर दिस ऑर्गेनाइजेशन, कि उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि क्या फ़ायदा है अगर हम नेचर को कंजर्व करते हैं, अगर हम एनिमल्स को, फॉरेस्ट को डैमेज नहीं करते हैं तो उसमें से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। जो टूरिस्ट आएंगे वो एनिमल्स को देखने आएंगे, फॉरेस्ट को देखने आएंगे, तो उसमें से आप कैसे पैसा कमा के अपनी उसको स्किल को यूज़ करके आप एम्प्लॉयमेंट कर ले सकते हो, यानी वो कमाने का तरीका आप बना सकते हो टूरिस्ट में से। उसके जो रिसोर्ट वगैरह हैं आप बाजू में ही उनको अरेंजमेंट करो टूरिस्ट के रहने की, और उनको ये सब दिखाओ, तो उनको वो ट्रेनिंग दी जाती है, वोकेशनल ट्रेनिंग। मडेगौड़ा इज़ वन सच लोकल agriculturist who is trained at BCRTI and is now a certified naturalist employed by the bison. In the past, I have lost almost 80% of season yield of sugarcane to such animal attacks. I used to hate them, but now I have learned how important these animals are and the value of protecting them. He says, I have known these jungles for 35 years. I know where the animals are and I realize I can guide visitors and get paid for it. In a way, the animals are paying me back. Now, एक आदमी है लोकल मडेगौड़ा, वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि अभी मैं इनमें से सीखा हूँ, ट्रेनिंग लिया है BCRTI में, और मैं एक सर्टिफाइड विथ सर्टिफिकेट वो जो है नेचुरलिस्ट है। और वो बताते हैं कि मैं अभी मेरा जो पहले था फील्ड में शुगर केन का जो ये था, यील्ड था, सीजन्स यील्ड शुगर केन की 80% क्या हुआ था, ऐसे एनिमल के अटैक की वजह से मेरा चला गया था। तो मुझे बहुत ही नफ़रत हो गई थी इनसे, बट अभी BCRTI में जब भी ट्रेनिंग मिली तो अभी मैं इनको एनिमल्स को प्यार करने लगा हूँ। क्यों?
क्योंकि अभी मुझे इतना ट्रेनिंग दिया गया कि अभी मुझे पता चल जाता है। अभी मैं यहाँ पे 35 ईयर्स से रहता हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कौन सा एनिमल अभी किधर होगा। तो जब भी कोई विज़िटर आता है तो मैं इसको अच्छे से गाइड कर पाता हूँ, जंगल में ले पाता हूँ। मुझे पता है कि वो एनिमल अभी कहाँ पे है, कैसे उससे दूर रहने का। तो वो जो टूरिस्ट हैं वो मुझे पे करते हैं क्योंकि मैं इनको सेफली लेके जाता हूँ, लेके आता हूँ। तो ये एनिमल्स की वजह से ही मुझे अभी पैसा मिल रहा है। जिनको मैं हेट करता था, नाउ आई हैव स्टार्टेड लविंग देम बिकॉज दीज एनिमल्स आर दी वन हु आर पेइंग मी बैक, जस्ट बिकॉज मुझे उनका नॉलेज मिला है, उनके बारे में पता चला है, तो मैं पैसा कमा रहा हूँ। The forests have taught me many things. For instance, listening is a sense for more important than sight. You have to switch off your vehicle, sit and listen. For the forest is constantly communicating through the voices of birds and animals. He explains. Tracking on animal also teaches you life lesson. The Black Panther has taught me patience, but above all, it has taught me to never stop discovering. There are just so many amazing experiences to learn and share with the world. नाउ ही इज सेइंग फॉरेस्ट ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत सारी बातें बताई है कि यू हैव टू, उनको साइलेंटली आप सुनो, यू स्विच ऑफ योर व्हीकल, आवाज़ नहीं करो, सिट डाउन, लिसन। जो फॉरेस्ट है, जो एनिमल है, वो आपसे बातें करते हैं, बर्ड्स एनिमल्स वो आपसे बातें करते हैं, वो आपको कुछ सिखाते हैं, दे टीच यू समथिंग, सम लेसन्स। जैसे ब्लैक पैंथर हैज़ टॉट मी पेशेंस। सो ये सब बातें डिस्कवर करनी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं। मैंने बहुत सारी सीखी हैं और आपसे भी सजेशन है कि आप उनको हर्ट मत करो और वो सब सीखो। Now, this article has been taken from CN Traveler magazine published by Land Rover India. So here we finish part 2 as well. Now brainstorming session is there, which is together for both the parts, part 1 and part 2. Okay, I will just give you a short brief of the brainstorming. It is quite big. Now if you see, this is activity based question. If you see this, arrange the following incident in a proper sequential order as they have occurred in part 1. Part 1 में से है, तो I have already written the answer. Correct order is the author was moving from jungle as quietly as possible, finding his way through the thicket. Then the langur saw the leopard. Then the author met a villager. Then writer realized that he was lost in the woods. ऐसे ऑर्डर में आपको लिखना है। करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ फर्स्ट 2 आर करेक्ट, थर्ड फोर्थ जो है इनकरेक्ट है, तो मैंने करेक्ट आंसर लिखा है। शाज फेल टू यूटिलाइज द फाइनेंस अकर्ड आउट ऑफ टूरिज्म। शाज हैज़ बीन सक्सेसफुल इन पुटिंग द फाइनेंस अकर्ड आउट ऑफ द टूरिज्म टू गुड यूज। अकॉर्डिंग टू द लोकल एग्रीकल्चर, सीइंग इज मोर एसेंशियल देन लिसनिंग। According to the local agriculture, listening is more essential than seeing. Okay. Now, signs of the vicinity of village. Writer को जब भी खो गए थे जंगल में, तो क्या साइंस मिली जब भी इसको पता चला कि पास में ही विलेज है? क्या साइंस थे जैसे उसको पता चला? जैसे कुछ कैटल की आवाज़ आ रही थी, लाइटनिंग ऑफ लैम्प्स दिखे, और राजा राम भलावी का लैंटर्न दिखा, लाउड स्पीकर, क्योंकि शादी थी वहाँ पे, बाइसाइकिल के ट्रेल निशान थे, ड्रॉपिंग ऑफ ब्लूबेल्स में से सब उनको पता चला कि विलेज पास में ही है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हेल्ड बाय शाज। नाउ दिस इज़ फ्रॉम पार्ट 2। शाज को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? PCRT है इन्होंने बनाया जो एजुकेट करने के लिए विलेजर्स को। ये इंश्योर्स दैट टूरिस्ट करेंसी इज़ पुट टू गुड यूज़, पैसा मिल रहा है। Shaz provides locals with vocational training so that they can benefit from tourist currency. Shaz enables locals to acquire skills from visitors to his resort. ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अभी लंगूर्स जो आवाज़ कर रहे थे, फ्लो चार्ट है स्टेटिंग द रिएक्शंस ऑफ द पेट्रीफाइड लंगूर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेपर्ड आया था, इफ़ यू रिमेंबर पार्ट 1 में हमने किया था, और लंगूर आवाज़ कर रहे थे। तो आपको फ्लो चार्ट में बताना है क्या क्या कलाम आया। Alarm increased, langurs spread to nearby treetops, then younger langurs also started alarm. Complete the web diagram describing each step taken by a writer as a solitary traveler while moving in jungle with great precaution. क्या क्या प्रिकॉशन लिया? आराम से, पैरों की आवाज़ नहीं आ रहा है क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा था कोई वाइल्ड एनिमल अचानक से आ जाए, कि अपने आप का कैमोफ्लेज कर दिया, छुप गए थे।
following the trails with animal minimal sound, grasping various sounds, paid attention towards the chaos by animals. Like this, he had taken precautions. Complete the table explaining the qualities that you would like to imbibe from nature within yourself. Provide the reasons for the same. अभी ट्रीज हमको क्या क्वालिटी सिखाते हैं? सेल्फलेस लव. स्ट्रीम्स क्या क्वालिटी सिखाती हैं? चेंज कोर्स. अभी रीज़न बताना है क्यों. बिकॉज ट्रीज ऑफन गिव बैक मोर टू एनवायरमेंट देन दे टेक फ्रॉम इट. दे डू सो विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न. बहुत कुछ देते हैं ट्रीज़. फ्रूट्स देते हैं, शेड देते हैं, लीव्स देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, बट उनको हम वो एक्सपेक्ट नहीं करते. हमको ऑक्सीजन देते हैं, वो हमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते. वैसे स्ट्रीम्स दे चेंज कोर्स एंड बिकम फ्लेक्सिबल एंड दे टीच अस that you should be flexible and change according to the situation. Fill in the blanks with appropriate phrases or expressions. Some phrases are given time and again. To one's heart content यानी एकदम full satisfaction के साथ. Frantic speed यानी बहुत ही तेज़ी से. In a jiffy, in a confusion, in a hurry. आपको blanks में डालना है. I was on diet for some days. बट टुडे आई एम गोइंग टू ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट. बहुत दिन भूखा रह गया, डाइट पे था, अभी मैं एकदम जी भर के खाऊंगा. एवरी मदर स्कूल्स हर चाइल्ड टाइम एंड अगेन फॉर द ओवर यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन. टाइम एंड अगेन यानी वापस एंड वापस मम्मियाँ अपने बच्चों को डांटती हैं फ़ोन यूज़ करने के लिए. ऑल देयर एजुकेशनल प्रॉब्लम्स वर सॉर्टेड आउट इन अ जिफी बिकॉज ऑफ द फंड्स गिवन बाय NGO. फटाफट से कर दिया. राज रैन एट अ फ्रेंटिक स्पीड टू कैच द ट्रेन. सॉलिड स्पीड से वो चला गया. Begin the following sentence with the words given in the brackets. Now if you see, I can guide the visitors. You have to rewrite the sentence beginning with visitors. जो ब्रैकेट में वर्ड दिया है उसको आपको स्टार्ट लिखना है बिगनिंग विद दैट वर्ड. जैसे विजिटर से स्टार्ट करना है, आई से स्टार्ट करना है, दे से स्टार्ट करना है, द बाइसन से स्टार्ट करना है, आई से स्टार्ट करना है. नाउ एक्चुअली इफ़ यू सी, व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स एट सब्जेक्ट पोजीशन, इट इज़ नथिंग बट पैसिव वॉइस. तो ये जो सेंटेंस है, इट इज़ नॉट डायरेक्टली आस्क्ड कन्वर्ट फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, बट इट इज़ रिटन रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विद दिस वर्ड. तो आपको समझ जाना है कि ये आपको पैसिव वॉइस में लिखना है. जैसे आई कैन गाइड विजिटर्स, विजिटर्स कैन बी गाइडेड बाय मी. सो आपको समझ जाना है कि पैसिव में करना है. ऐसे नहीं कि आप लिखो विजिटर्स कैन गाइड मी, नहीं, इसको पैसिव में करना है. एनिमल्स आर पेइंग मी बैक, अभी आई से स्टार्ट करना है, यानी आई एम बीइंग पेड बाय दी एनिमल्स. अभी अगर आपको भूल गया है हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, इफ़ यू हैव फॉरगॉटन, you can go to my YouTube channel Learn with BS, go to playlist in English grammar, you will find active voice, passive voice. Just have a revision before you solve these sentences, before you rewrite these sentences, idea will become clear. If you want, I can give direct link in the description box of active voice, passive voice. See, all these are active voice, passive voice sentences. Rewrite the sentence using not only but also. Again, not only sentence is given, you have to write not only but also. ये भी grammar part I have explained in my video transformation of sentences. Transformation of sentences में मैंने not only but also कैसे यूज़ करते हैं वो मैंने बताए हैं. तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में इंग्लिश ग्रामर में ये आपको मिलेगा एक्सप्लेनेशन पार्ट. आई हैव रिटन डायरेक्टली आंसर्स फॉर यू. Okay, so we complete everything. This last activity, most importantly, nature teaches us. क्या सिखाता है वो वेब डायग्राम में आपको लिखना है. Then again you have activity based questions. Find out the information about qualification and eligibility required in profession. Students, if you want, you can take screenshot of the answers because I am not reading everything for you. Just go through the grammar revision, active voice, passive voice. Then you can see these answers. It will be helpful to you. You can take screenshot if you want. Again, this not only but also you can take screenshot. Fine. If any doubt, you can write in the comments box
I hope this video was useful to you. Thank you for watching this video.